Hi, my dear student. I welcome you all in my first class of interior designing. Today, we will be understanding what is interior designing, what are the elements, what are the principles, and how we can apply those all things in the interior. So, before all this, let me introduce myself. My name is Varnali Chakravarti, and I'm going to be your teacher for the throughout of the courses. And I have a small request that please do not interrupt me in between of this class. Be silent. Don't talk in the chat box. Do not raise unnecessarily anything. Sometime what happened, you forgot to unmute yourself and there are very noisy background from your end. So I really don't want those all stuff. If there is any doubt you are having, we will solve those query by Saturday on Saturday, 1 to 1. Meanwhile, jot down your all doubts if you have, and then by end of the week, we'll solve your questions and doubt sessions. Okay. I hope this is very clear. See, as we are very short of time, duration is nothing. For me, if I want to say about interior, it's a vast portion, it's a vast career. And as you want to be a designer, then for me, I have to take each movement very carefully. My time is precious, so yours. And this class will be in Hindi and English. So don't think that I will be only speaking non English or Hindi because I consider you all understand Hindi. And if don't, then we'll manage somehow, but try to understand things. If there is any queries, do let me know later on. Okay. And it's a request. Don't talk in between. Don't send anything with chat box. And there will be some assignments, homework, which will be given by me. And I expect you to do it by each weekend. Okay, your submission should be the end of the weekend. So let us start without wasting much of time. Thank you. So what is element of design and what is principle of design? Element of design is the father and principle of design is like mother. If you want to create any design, for that you need to have some imagination. See, why we are in this part? What is the role of interior designer? First of all, we need to understand that part. Then only you will understand the applications and the importance of this designing process. ओके मतलब अगर आपको कुछ डिजाइन करना है तो एज एन इंटीरियर डिजाइनर आपका रोल क्या है? आप कुछ बनाना चाहते हो तो किसके लिए बनाओगे? क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के लिए सबसे बनाओगे या फिर अपना सब कुछ अब थोपने वाले? भाई मैं डिजाइनर हूँ, मुझे सब आता है, मैं सब कुछ थोप के बनाऊंगी? नहीं, क्लाइंट आपका काम सुन के ही नहीं लेगा और फर्स्ट टाइम में आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो ऐसा सीन नहीं फेस करना है हमें एज ए इंटीरियर डिजाइनर। लोगों के साथ जेंटल रहना है और मैं तो एक ही बोलूंगी, कम्युनिकेशन इज द पावर फॉर अ बिग बिजनेस। इफ यू हैव अ गुड कमांड इन योर कम्युनिकेशन, वेदर इट इज हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी रहे, कॉन्फिडेंटली बोलो, अपनी नॉलेज को यूज करो और चीजों को सही से प्रेजेंट करने आ गया, सो दैट is something that you're going to do it well and your business will be run amazingly. तो मैंने भी अपने इंटीरियर की बिजनेस में ऐसे ही बहुत ग्रो किया है। फ्रीलांसर डिजाइनर रही हूँ मैं, वास्तु एक्सपर्ट रही हूँ मैं स्पेशल वास्तु के कोर्सेज भी लेती हूँ और कुछ सॉफ्टवेयर अगर आपको कभी फ्यूचर में सीखना रहा, जैसे कि ऑटो कैड या फिर स्केचअप, डिटेलिंग, तो वो सारी चीजें भी हम सीखेंगे, लेकिन उनके सेपरेट कोर्सेज होते हैं। आपके ये कोर्स में तो है ही है, लेकिन वो कुछ चीजें हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। विल डिस्कस दोस थिंग्स लेटर ऑन। नाउ लेट अस वी अंडरस्टैंड what is element of design and what is principle of design and why I said that they are father and mother। क्यों मैंने ऐसे कहा कि वो माँ बाप है डिजाइनिंग के? बिकॉज अगर आप इमेजिन करोगे कोई डिजाइन, मुझे एक चेयर बनाना है, एक टेबल बनाना है एक क्लाइंट के लिए, तो वो आपके पास ना गूगल की इमेज लेके आएंगे। ये 90%। आप भी अगर कुछ बात करना हो डिजाइनिंग के बारे में तो आप भी पहले गूगल की इमेजेस को रेफरेंस के तौर पे लोगे, not for copying them but for your inspiration, because you need to get some idea. Every layman do that, so it's a natural human behavior. So for that reason what we do, we take those design for the inspiration and then we add on the things according to requirement of the client। तो जो client की requirement है फिर हम लोग उनके reference से ओके ये है वो है, फिर हम बात भी करेंगे कि बजट क्या है, ओके ये है वो है। तो यहाँ पर एलिमेंट ऑफ डिजाइन और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन का क्या खेल है? सी, इमेजिनेशन को अगर जान डालनी है तो एलिमेंट के बिना वो इम्पॉसिबल है। एलिमेंट ही उस चीज को जान डाल सकता है। ओके, तो आइए जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि डिजाइनिंग के फंडामेंटल्स क्या है, हाउ दे आर इफेक्टिव फॉर द डिजाइनिंग कम्युनिकेशन। ओके, दिस इज अ कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज एलिमेंट ऑफ डिजाइन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन।
सो हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले, इंट्रोडक्शन टू डिजाइनिंग एलिमेंट, लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर, स्पेस, फॉर्म, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में बैलेंस, कॉन्ट्रास्ट, फिर हमारे बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन फिलहाल अभी थोड़े थोड़े करके आएंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत वास्ट है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको हर एक चीज डिटेल में समझे. आई रियली वांट दैट ईच एंड एवरी टॉपिक यू शुड अंडरस्टैंड क्लियरली, एंड इफ देयर इज एनी डाउट देयर विल बी अ सैटरडे सेशन, doubt session over there, then you can ask me those questions and we'll solve your doubts. Till that you have to just bring your book, jot down all those steps or any question you have, then we'll discuss. Okay, not today, but that will be discussion will be only on Saturday, not in between of this class. Okay, I hope you all are able to see me. Introduction to designing element. And what is designing element? When the there's a creation of planet, it was not just it happens randomly. Okay, it was the Big Bang theory, or it was what exactly happened. There's an explosion of something which happened, and then there are small molecules and particles of some waste material of those planetary, and then we got something which comes like Earth, right? So some small molecule, it's like a beginning of the planet, from that start from a dot, and then the tiny dot, we are able to understand, oh, this is not a tiny dot, it is a big planet. So what is the role of tiny dot and how we consider the big planet, how we have given this name that it is the planet? If you're not understanding, let me give you another example that will be much better. So if you're thinking to create anything in your mind, then anything which you want to bring in reality, आप सोच रहे हो कि मुझे एक चेयर बनाना है, जैसे कि मैंने आपको टेबल बनाना है, तो वो कैसे बनाओगे? पहले आप सोचोगे मेरा चेयर बनेगा लाल पीला कलर का, लेकिन तुरंत आते लाल पीला कलर आएगा क्या? नहीं, पहले एक डॉट आएगा, आप खाली पेपर निकालोगे, एक डॉट रखोगे, एंड देन यू विल स्टार्ट इमेजिनिंग. ओके, क्लाइंट ने क्या कहा, ओके इसको ऐसा चेयर चाहिए, तो आप एक लाइन मारोगे, देन वो लाइन को मूवमेंट पे करोगे, फिर डॉट से आप मूवमेंट पे जाओगे, कोई तो मूवमेंट से वो डिफरेंट टाइप के लाइंस यूज करोगे, एंड वो इमेजिनेशन के हिसाब से अच्छा मेरा चेयर तो ऐसा बनता है, कुछ इस तरह दिखता है. तो वो जो चीजें है वो क्या है, वो एलिमेंट ही है. वो सारे आप एलिमेंट को ही एप्लीकेशन में यूज करो. यू आर गोइंग टू अप्लाई those things in real life by just imagination. Just imagine with of the element, you are doing everything, but you don't know they are known as element. Understood? So what are the element of the, let us we understand them. Line can create a movement and define shape and guide viewers throughout the design. For example, if I want to make a line like this, or I just want to create some wallpaper like this, for that I need to know how they have been generated, how they have been created, what should be the first step that I need to make them. Should I just go on doing like this? How that is formed? So we have understood that there is a line which will help us to give us some kind of shapes, and if we just do something randomly like this curves, we can able to make anything out of it. Now what is shape? Shapes are the fundamental to create a structure and elect through different feeling or association. Coming to the dictionary, the definition, let me be very simple in Hindi. देखो शेप क्या होता है, आपने लाइन बनाया, लाइन को आपने सोचा कि ठीक है मुझे चेयर बनाना है, तो आपने एक लाइन मारा, फिर ऐसे लाइन मारा, तो आपने टॉप व्यू बना लिया. टॉप व्यू बना लिया. टॉप व्यू क्या होता है, आपने सोचा कि अच्छा मेरा चेयर ऊपर से ऐसे दिखेगा, उसका कलर ऐसे दिखेगा, और कुछ लाइन को मिला के आपने रेडी कर दिया, ड्राइंग में रेडी कर लिया. तो आपने क्या किया, 2 लेग्स बनेंगे या 4 लेग्स बनेंगे, तो आपने शुरू कर दिया शेप देना कि नहीं मेरे चेयर को सपोर्ट देने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए मुझे 4 लेग्स देने होंगे. तो आपने 4 लेग्स को एज ए शेप डिफाइन करना शुरू कर दिया. फिर आप बोले कि नहीं इसमें एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट होगा, तो अपने सर्कल को भी अपने शेप में डाल दिया. बिकॉज आई होप यू ऑल नो दैट शेप is nothing but a geometrical shape and organic shape. What is geometrical shape? You all know circle, rectangle, triangle. So with help of all those shapes we can create anything from it, right? ये possible है. So I hope आप सबको पता है कि geometrical shapes क्या क्या है, rectangle, square, circle. So ये सारी चीजें क्या होती है, shapes के अंदर आती है.
किसमें, ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर आती है। ना व्हाट इज ऑर्गेनिक शेप्स, ऑर्गेनिक शेप्स आर दोज विच आर डिराइव फ्रॉम नेचर, यू आर इंस्पायर्ड फ्रॉम नेचर। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ पीकॉक डिजाइन, आई कैनॉट किल पीकॉक टू गेट पीकॉक डिजाइन इन माई प्रिंट. So for that reason, I need to give some, I need to get some inspiration from the peacock, how the feather looks like, what actually the color she holds with her, and what are the elements that she is holding. If there is any curve line, if there is any spiral line, if there is a U line, what kind of shape she is carrying with her. So with those stuff, I can now bring a wallpaper like structure in my room, and I can use my peacock print for my wallpaper. Understood? So this is how I am inspired from a peacock. Peacock is a natural thing. It's a human, not a human thing, it's a natural thing. It's an organic thing. So I am taking those things from there. And what more about the organic? Organic shapes are like, they are freely available in the nature. I want mountains, I want something like that, I want some curves in my designing. So how these curves are, we got those things, we got those designs from the nature itself. There are mountains, there are different terrains, there are valley. So all the shapes are very curvy, maybe some are the sharp edges, maybe some are the narrow edges. So all those things, we got different types of shapes, and those shapes are considered as the organic shape. If you see, and if you have seen some rivers or some oceans or something like that, did you saw the waves? I'm pretty sure you all have seen that. So that shapes becomes our inspiration. So whenever we want to design or we want to talk to some people, like, okay, have you seen the rivers, how they float? Yeah, I know, their waves are like this. So you are having that language to communicate with them. So now this is what you have to learn, that this are the language for the design. Line is a language for design, shape is a language for design, color is a language for design, and text is also language for design. So what are things we are having in lines? We are having different types of line, that is horizontal line, vertical line, zigzag line, curved line, and there are a lot of more of lines that we are going to study further. Now shapes, we are having two types of shapes. How many types? Two types. So organic and geometry. Organics are from nature, derived from nature, that we need to get inspired. And geometry are those like rectangle, square, triangle, and so on and so forth. Okay. Now coming up to the colors, what exactly the color means? Color play a critical role in design, and it can influence the emotion. For example, you may not liking this red background, but maybe it is my favorite color, and that's why I want them in my background. So they are my attachment, because I feel confident, I feel enjoyable, I feel very high, I feel very happy. So this sets some moods, okay? They set some mood, and they create a visual harmony. Not for you, but maybe for me. Or maybe you are also feeling good at the same way. We don't know. So for each and every individual, the emotions are different for the colors, according for the colors. Now moving on the texture. What is texture? When you see something and when you want to touch something, both of those textures are very different. What you see, that become your visual texture. For example, you can see my skin and you can see something is wavy here, but you don't know whether it's a soft, it's a hard, but you can sense them. आप सोच सकते हो कि अच्छा ये कुछ स्मूथ कर्व्स जा रहा है और ये कुछ अजीब सा दिख रहा है. तो टेक्सचर आप इमेजिन कर रहे हो, तो जो इमेजिनेशन आ रहा है थ्रू विजुअल, वो आपके लिए क्या हो जाता है, विजुअल टेक्सचर होता है. लेकिन जैसे आप उस चीज को छूने लगते हो, जैसे मेरी इयरिंग है, मैं बता सकती हूँ इट्स वेरी स्मूथ एंड क्वाइट हैवी. आपको क्या पता ये हैवी है कि सॉफ्ट है या फिर ये क्या है एग्जैक्टली. जब तक आप उसको छूओगे नहीं, आप उसको नहीं बता पाओगे. तो फॉर दैट रीजन, टिल यू आर वॉचिंग मी, this earring can be light for you, but the person who is wearing this earring and can touch the surface of this earring can tell you the real judgment of the weight of the earring. So texture can be hard, can be smooth, can be rough, and if I'm touching something, that is known as tactile texture. But what I'm watching, that become a visual texture. Textures add depth, interest to the design, and it makes more engaging and inviting to the viewer. मुझे लगता है आप लोगों को नहीं समझा होगा, फिर से समझा रही हूँ टेक्सचर की, बिकॉज टेक्सचर बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है. जिस चीज को आप छू रहे हो, आप अपने हाथ को छू रहे हो, आप अपने गाल को छू रहे हो, तो आप कुछ फील कर रहे हो.
जो फील कर पा रहे हो उसको टेक्टाइल टेक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्टाइल टेक्सचर। लेकिन जो चीज को छू नहीं पा रहे हो लेकिन सिर्फ आप देख रहे हो, ओके, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूँ, एंड ये चीजें चल रही है स्क्रीन में, यू कैन सी ऑल दिस स्टफ बट यू कैन नॉट टच देम, but you know, okay, they are delight, okay, they are nice, so all those things are visual texture. Understood? Like if I say what is the color of my this, so you will say ma'am white, green, whatever it is, right? Something like that. But I will tell you whether this is a white or not or something or what, right? So till that I don't touch this, I cannot give you, you cannot give me the right judgment for my color. But the person who is watching those things in personally, they can tell you whether it's a white or not, or whether it's a smooth or rough. And likewise, texture can be smooth, texture can be soft, it can be sandy, it can be any way. Okay, there are no limitations about textures. Now, how to create the visual interesting? Okay, how to create a visual interesting? What about this? When you're trying to create some designing, there are certain things that you need to focus. That is, you need to focus on the importance in the visual communication or the visual composition. What is visual communication and visual composition? See, whenever you draw something, people going to look at you for 1 minute. Okay, they will look you for 1 minute. Then I don't like it, and this is something. But if I'm very attractive, I have done lot of makeup on my skin or something like that, then you will be start noticing my each things. Okay, how she is talking, how she is looking, what she has wear, or whether she is good or not. You start making those judgments. Designing also do the same thing. If your designing is not creating focus, if your designing is not establishing or not having the proper size or shape, there are not a proper placement of things, and those things are not creating the right amount of eye catchment. Okay, वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा है, तो ये हो सकता है कि आपको 1 सेकंड के लिए लोग नोटिस तो करके दूसरे तीसरे बार आप रील की तरह ऐसे करके गायब हो जाओगे, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं क्रिएट करेगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to create a visual composition in the designing process. Now, what is visual composition and what are types of visual composition we have to work on? We need to focus on the creating in the designs. Design elements help in creating a focal point in the visual composition, directing the viewer attention to important information. That means अगर मुझे कोई इयरिंग क्रिएट बनानी है या फिर मुझे नेकलाइन बनाना है, ये एक्चुअली फैशन क्लास नहीं है, लेकिन फॉर गिविंग यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दिस वर्क, तो उसके लिए बेस्ट एग्जांपल यही है कि अगर ये रूम है, अगर ये रूम होता और मैं यहाँ पर बैठी होती, तो आप मुझे देखते कि वॉल को देखते, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता आप उस चीज को देखते, राइट? तो आपके एलिमेंट में आप जिस चीज को ज्यादा फोकस करोगे वो चीज आपका फोकल पॉइंट बनेगा और उसी बेसिस पे आपके व्यूअर्स को सबसे ज्यादा अटेंशन उस चीज पे जाएंगे और वो उनके अपना रिसर्च करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट द इंटीरियर, इफ यू अप्लाई वॉलपेपर विथ सम क्रीम कलर एंड सैंडी टेक्सचर, maybe you don't like it at the first moment, but once you visit the place personally, you start touch those things and start feeling those things. Oh, you will find, oh, this is maybe not looking that good in first impression, but once you are going to see those things personally, that will create a great impression. So is it that we have to do it always? No. If you don't want to do all the stuff, how you can make and can bring interest in the designing? So there we have to work. So we have to create some focus on anything which is with the part of एलिमेंट. अंडरस्टूड? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझ में आ जाएगा. आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं. Establishing hierarchy. What does that mean? Effective design establish hierarchy through sizes, colors and right placement, guiding the viewer to understand the information. For example, अगर आपको मैंने कहा कि मुझे रेड कलर का पूरा थीम बेस्ड इंटीरियर रेडी करना है, तो रेड कलर में क्या पहले रेड कलर बेडरूम मैंने कहा क्या, मैंने सिर्फ थीम बोला है, कहा बेडरूम या फिर किचन रूम या फिर लिविंग रूम, कहा, तो पहले तो एक ये आएगा. फिर अगर किचन है तो उधर के मैं
किस लेवल के साइजेस यूज करूंगी, मेरे किचन के कैबिनेट्स कौन से साइजेस के होंगे, मेरे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी चीजें मैं यूज करने वाली हूँ, नॉट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या जो भी चीजें वहां पर जाने वाली है, यूटेंसिल्स वो कैसे होंगे, मुझे कहाँ फोकस करना चाहिए, मुझे दीवारों पे फोकस करना चाहिए या फिर मुझे सिर्फ यूटेंसिल्स पे फोकस करना चाहिए। तो हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज आपकी मैटर करती है। ओके, आपका राइट कलर एंड राइट सिलेक्शन ऑफ थिंग्स, आपके सारे सही अमाउंट ऑफ लाइट, उनके रिफ्लेक्शंस, उनके शैडोज तो नहीं गिरे। पता चला आप खाना पका रहे हो, आपके सर के ऊपर लाइट है और आप देख ही नहीं पा रहे हो खाना क्या पक रहा है, और प्रॉब्लम हो जाएगी, आप सही से नमक मसाला डालना भूल जाओगे, या फिर ये हो सकता है कि ज्यादा गिर गए और खाना बहुत बेस्वाद हो गया। चीजों को राइट प्लेस पर, जैसे लाइट का जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, उनको राइट प्लेसमेंट में रखने से क्या होगा, विजुअल क्लैरिटी होंगी और चीजें अच्छी सी डिजाइन होगी। तो यू हैव टू आल्सो फोकस ऑन द साइज, कलर एंड राइट प्लेसमेंट ऑफ थिंग्स सो दैट जो भी वहां पर वर्क करे उनको इजी करे। गाइड द व्यूअर्स आई, गाइडिंग द व्यूअर्स आई, व्हाट डज दैट मीन? मास्टरिंग ऑफ डिजाइन एलिमेंट अलाउ डिजाइनर to guide the viewer eye smoothly across the composition for better engagement। इसका मतलब क्या है कि अगर एलिमेंट अपने सही पर प्लेस नहीं किया तो क्या होगा, इंसान से गलती हो सकती है, वो चीजें गलत सलत बना देंगे, और अगर वो गलत सलत बन गई तो प्रॉब्लम ये होगा कि आप चीजें नहीं से सही से नहीं बना पाओगे। ओके, तो आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप एलिमेंट ऑफ डिजाइन को सही से बनाओ और उनको सही से उनके साथ वर्क करो। एक मिनट, मुझे थोड़ा पानी पीने लो, गला दुख रहा है मेरा। ओके, कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा देर कंटिन्यू करते हैं। पानी अभी बहुत टाइम लगेगा आने के लिए, तो मैं सोचूं मैं कंटिन्यू कर लूं, जब पानी आएगा तभी आएगा। ओके, सो आई होप आप लोग को समझ में आएगा कि कैसे क्रिएट करना है फोकस्ड एलिमेंट्स को ही यूज करके सब कर सकते हैं आप। साइजेस में उसमें मैनेज करने से कुछ शॉर्ट हाइट, लॉन्ग हाइट, डार्क कलर, लाइट कलर, बहुत सारी चीजें जिस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। ओके, फाइन। क्या है, लाइंस के बारे में भी समझते हैं। लाइंस में क्या क्या है, स्ट्रेट लाइन है, कर्व लाइन है, थिक थिन लाइन है, डैश लाइन है, सॉलिड लाइन है। मैं डिटेल में भी नहीं जाऊंगी, बिकॉज आपने सुना होगा कि स्ट्रेट लाइन, आपके बाल स्ट्रेट है तो ये स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये बाल स्ट्रेट है मतलब क्या, इट इज टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट लाइन। ओके, यू आर सीइंग अ पर्सन स्टैंडिंग इन सम पोर्शन, सो दैट्स बिकम व्हाट, अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ओके, सो दैट बिकम योर स्ट्रेट लाइन। जैसे अभी इयरिंग की बात कर रहे हो तो आप लोग को देख रहे हो, तो ये एक हैंगिंग इयरिंग है, तो ये हैंगिंग इयरिंग वर्टिकली है क्या, हाँ, तो वर्टिकली जो है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब ये सीधा सीधा, सीधा को हम वर्टिकल इंग्लिश में कहते हैं। ओके, कर्व मतलब जो थोड़ी वेवी हो, ठीक है, नहीं मतलब ऑब्वियसली अब इंसान के हेल्थ से पता चलेगा कोई कितना पतला है कितना मोटा है, तो डिजाइनिंग में भी कितना आपको, कितनी थिकनेस की आपको प्लाईवुड होनी चाहिए, कितना पतला आपका प्लाईवुड कहाँ कहाँ जाएगा, बैक पे जो होता है वार्डरोब के वहां पर थिन जाता है या थिक प्लाईवुड जाते हैं। तो डैश लाइन क्या होता है, डैश लाइन क्या यूज होता है, वो डिजाइनिंग में क्यों यूज होता है, कोई हिडन चीज है जो हमको बताना होता है जिसमें डैश लाइन यूज होता है। सॉलिड लाइंस क्या होते हैं, उनका यूज क्या होता है, थोड़े बहुत इसके बारे में हम लोग आज समझते हैं। Straight lines are the open line to convey the order of stability in design. They create a sense of direction and the structure. That means, if I want to say I want a table, how table will get its stability? I need to have a legs, 4 legs for my table, so that and those should be in the straight line, in the vertical, otherwise it will not have the support। अगर टेबल के ऊपर ये 4 इसके पैर नहीं रहे ऐसे करके तो क्या वो स्टिक पाएगा, नहीं, वो गिर जाएगा। अगर मैं 3 भी रखूं तो फिर भी आई नीड समथिंग विच इज इन द स्ट्रेट प्रोपोर्शन। आप डिजाइनिंग पे वहां कुछ भी कर्विंग वर्विंग कर सकते हो, बट इट हैज टू बी अ वर्टिकल वन। ओके, देन कर्व लाइन में जैसे आपने कुछ कर्व डिजाइन किया, आपने कुछ कार्विंग्स की, सो दैट कैन बी अ कर्व लाइन। थिक एंड थिन लाइन मतलब आपने उस कार्विंग में कुछ अपने मोटे डिजाइनिंग निकाले, कुछ पतले, आपने मेहंदी में देखा, मेहंदी में भी मोटे और पतले डिजाइनिंग आते हैं, लाइक दैट। तो डिजाइनिंग में थिक एंड थिन लाइंस वैसे यूज है। डैश लाइन हम लोग कब यूज करते हैं, डैश लाइन का एक बड़ा कभी होता है जब हम लोग को किसी चीज को हिडन करना होता है, डिजाइनिंग बताना है कि यहाँ से कॉलम गया, यहाँ से बीम गया,
तो तभी हम डैश लाइन यूज करते हैं, अदरवाइज दे हैव नो सच इंपॉर्टेंस। ओके, बट तो भी मैं बता देती हूँ, डैश लाइन कैन indicate the movement or the separation. They are the frequent used in diagrams and graphic designs. Okay, इंटीरियर में भी ड्राफ्टिंग में होता है, जब आप प्लान और एलिवेशन सीखोगे ना तब मैं आपको समझाऊंगी। Thickness and thinness signify strength and boldness, while lines can represent delicacy and subtle in the design. Solid lines are what? Solid lines are used to convey reliability, preeminence. They are commonly applied in boundaries and the outline. तो अगर कभी मैं आपको ड्राफ्टिंग में बनाने बोलूं कि ऐसा कुछ ड्राफ्ट करना है, बिकॉज ड्राफ्टिंग आपकी रहेगी, ठीक है, तब आप थिक लाइन यूज करोगे, आप बॉर्डर बनाओगे, उसके अंदर ही आपको ड्राफ्टिंग करनी होगी। तो ये सारी चीजें आपको विद टाइम होने वाली है। लेआउट बनाने के लिए होती है। इम्पैक्ट ऑफ डिजाइन, ये सारी स्ट्रक्चर्स क्या क्या करते हैं, इनका क्या इम्पैक्ट होता है डिजाइनिंग के प्रोसेस में। Creating a structure. Line up essentially in establishing a structure in design, providing an organized and cohesive within a layout. Within a layout. अगर मुझे एक लेआउट बनाना है तो पहले मुझे एक वर्टिकल लाइन बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मुझे 2 BHK का फ्लैट बनाना है या फिर 1 BHK का फ्लैट बनाना है, तो पहले मैं एक सीधा लाइन मारूंगी, सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन और वर्टिकल लाइन, या फिर मैं ऐसे लाइन मारूंगी हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल देन ये। आप लोग बिल्डिंग खरीदते हो या बिल्डिंग में फ्लैट्स खरीदते हो या फिर खुद का बंगलो खरीदते हो, कुछ भी ऐसा, तो पहले तो आपका ब्लूप्रिंट जाता है ना कि आपका घर कहाँ से खुलेगा, आपका घर ऊपर से क्या दिख रहा है। टॉप व्यू की बात करी थी, सो दिस इज द टॉप व्यू। ओके, दिस इज द टॉप व्यू। ऊपर से कैसा दिखेगा, कहां पर क्या जाएंगे, तो एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि कौन सी चीज कैसे दिखने वाली है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है ये लाइंस के दौरान। गाइडिंग द व्यूअर आई, गाइडिंग द व्यूअर आई, जैसे मैंने कहा कि चलो ये मेरा ये आपका घर है, तो यहाँ पर आपका लिविंग रूम है, यहाँ आपका बेडरूम है, यहाँ पर आपका किचन है या फिर ऐसा कुछ है, तो आप ये क्या एक ये लाइन आपको गाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या रूम की डिविजन्स होंगी। Okay, line had to guide the viewer's eye through composition, leading them to focal point and important information. Focal point मतलब क्या, अभी फोकल पॉइंट के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ठीक है, ये लाइन बनाया, ये मैंने एक बना लिया, ये मेरा फोटो फ्रेम है, अब यहाँ पर मैंने कैसा लाइन मार दिया, तो आपके लिए फोकल पॉइंट क्या हो गया, ये लाइन। क्यों है भाई, क्या मतलब है, लेकिन डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझाओ तो आपको एक डायरेक्शन देने के लिए लाइंस की इंपॉर्टेंस हो जाती है। ओके, now defining the space. Again, lines can effectively define the space and separate space within design, enhance clarity and functionality. Enhance clarity and functionality. So, as I said, I'm creating the rooms like this. Now, it defines the space and within the design. So, you can create a partition wall like this with the help of using lines. ठीक है, लाइन बनाओगे, पहले प्लान करोगे ना कि भाई एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, यहाँ से ये पार्टीशन का काम करेगा। लेमैन लैंग्वेज, बी अ वेरी लेमैन पर्सन, so that people can understand your things. So you will make like this kind of line with horizontal, vertical. There can be a curved balcony like this, or there can be an angle balcony like this. So that this part of thing will be what giving you clarity and also giving you an understanding कि आपका यहाँ पर क्या रोल और क्या उसकी फंक्शनैलिटी होने वाली है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। Impact on design, yeah, we have covered this. Now moving on with the more of topic. सब डिजाइनिंग के कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ मैं, जैसे कि आपने लाइंस इन ग्राफिक डिजाइन, अभी डिजाइनिंग एलिमेंट ऑफ डिजाइन कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ग्राफिक डिजाइन में भी यूज होता है, फाइन आर्ट्स में भी यूज होता है, उसमें डेप्थ एंड इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। लाइन इन ग्राफिक डिजाइन मतलब क्या होता है कि दे आर यूज्ड टू गाइड अ व्यूअर आई एंड क्रिएट अ विजुअल हायरार्की एनहांसिंग द ओवरऑल कंपोजिशन। आप क्योंकि ग्राफिक में क्या होता है, आपके सामने सब कुछ होता है, जैसे आपने बिलबोर्ड देखा होगा, बहुत सारी चीजें देखी होंगी, तो वहां पर फॉन्ट्स लाइन होते हैं, चीजें होती है, सब बहुत सारी चीजें होती है, तो एक प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट में होंगे तो चीजें नीट एंड टाइडी लगती है। और जब सारी टाइप के डिजाइनिंग उसमें अवेलेबल होते हैं तो उसका एक कॉम्पोजिशन क्रिएट होता है। कॉम्पोजिशन मतलब क्या, मिक्सिंग ऑफ ऑल डिजाइन को कॉम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें एक जगह पर हो जाती है, एक मीनिंग क्रिएट करता है। लाइन इन फाइन आर्ट्स, सो अभी फाइन आर्ट्स का अकॉर्डिंग लाइन का क्या रोल है।
sorry. In a fine arts, lines are employed by artists to convey emotions and create depth and adding dimension there the artwork. If you want to create a sculpture, how you will make it? You will make a nose, you will make eyes, and for that you need to have all things in geometrical shapes, a proper symmetry. All those things are created by using the line. Okay, you will be dividing the part of face and the structures according to your, and all those structures will be well defined, so that way the fine arts work will done. नेट ऐसे ही करके डिजाइनिंग का प्रोसेस भी काम आता है. डेप्थ एंड इंटरेस्ट, अभी क्या है, लाइन क्रिएट डेप्थ एंड इंटरेस्ट इन बोथ आर्ट एंड मीडिया, ड्रॉइंग अटेंशन एंड एनहेंस व्यूअर एक्सपीरियंस. व्यूअर एक्सपीरियंस के हिसाब से वो उनका ये क्रिएट करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक मिनट, यस, अगर मैं कहूँ कि मुझे एक पहाड़ जाना है, पहाड़ में जाना है, घूमने जाना है, एंड मैं एक पहाड़ का ऐसा कुछ बना लेती हूँ. ओके, आपने कौन सा लाइन, आप बोलोगे ना ये बहुत बड़ी माउंटेन है, यहाँ पर चलने के लिए दोज आर geographical scientists, not geographical, those are scientists, and they go for some research. There are some archaeologists, if I be very precise, if there are some archaeologists and they want to discuss about certain mountains and something with the excavations, then वो क्या करेंगे, वो वाह कुछ तो रिसर्च हो रहा है, तो मीडिया भी आई, सब लोग आएंगे, अच्छा मुझे बताइए आप क्या करोगे, तो दे विल डिस्कस लाइक दिस कि अच्छा एक माउंटेन होगा, यहाँ पर कुछ तो मुझे मिला है, विल डिस्कस, विल गो लाइक दिस, दे विल यूज सर्टन लाइंस. ओके, ये सर्कल भी कैसे बना, पहले ऐसे आपने लाइन किया, फिर ऐसे एक लाइन किया, फिर ऐसा लाइन किया, फिर ये एक सर्कल का शेप ले लिया, राइट, एक सर्कल का शेप ऐसे ले लिया. तो यू विल डिस्कस कि ओके ये 3 फीट नीचे रहेगा, 3 फीट कितना होता है, ऐसे 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 नीचे 3 फीट रहेगा, लाइक दैट. सो अच्छा ये कितना ऊंचा चढ़ना है, बोलेंगे आप कम से कम 2 से 3 फीट, देन इसके 3 फीट नीचे आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा. तो जो भी है ये क्या क्रिएट कर रहा है, ये बता रहा है कि अगर कोई चीज कितना नीचे जा रहा है तो उसका डेप्थनेस कितना हो सकता है. तो लाइन एक लिमिटेशन भी दे देता है कि कोई चीज की सीमा कितनी है और वो कितनी स्ट्रेच हो सकती है. ओके, लाइक दैट. मूविंग ऑन विद दिस टॉपिक. Yeah, is that? Now we will come to the topic known as shape. Shapes are, as I said, geometric shapes and organic shapes. Defining of a geometric shape. Geometric shapes are characterized by the precise and mathematical form and structure design, often found in architecture and modern art. You have all seen the UNESCO World Heritage CST station. Okay, Mumbai CST station. If not, I hope you have seen lot of churches, and they are made of some arches and something like that. Okay, citadel and like that. Those things. All those structures are what? They are the form of some shapes. Okay, they are the form of with some shapes. Define. So definition of organic shapes. Now, what is organic shapes? The shapes that are free form, irregular, as I inspired by nature. I told you so many times. They evoke a sense of movement and fluidity in the design. As I said, if I talk about the human behavior, we cannot kill any animals to get that print in the house. It is completely a crime. But I can have animal in my house with having some designing of that structure. मैं उसके शेप्स को, उसके कलर को अपनी इंस्पिरेशन में ले सकती हूँ, और किसी पेंटर को बोला कि बोली भाई तो उसका पेंटिंग बना दे, राइट. तो मैंने उसके शेप्स, उसके कलर, उसके सारी चीज को, फीचर्स को अपने डिजाइनिंग में उसके शेप के थ्रू दे दिया, लाइक दैट. सो मेरे पास एक एनिमल है, ऑर्गेनिक एनिमल रहा, और मैंने उसको शेप में डाल दिया. नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटी? Geometric shape offer clarity and order, while organic shape provide warmth and adaptability, enhancing the visual appeal of design. Geometric shape offer clarity and order. Rectangle तो आपको चाहिए, अगर मैं आपको बोल दूं रेक्टेंगल बनाओ, तो यू ऑल कैन क्विकली क्रिएट. अच्छा रेक्टेंगल ऐसा होता है, नहीं तो जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है वो स्क्वायर भी बना सकते हैं, ठीक है. तो रेक्टेंगल मैं बोलूँ, अच्छा मैं एटलीस्ट सबको बोल दूं सर्कल बनाओ, तो आप लोग सब लोग एवरीवन कैन मेक इजीली सर्कल, और इट्स लाइक समथिंग जीरो,
ओके, इतना बेसिक तो सबको ही पता होगा, आई एम प्रीटी श्योर विद दिस. Now if I say create mountain, now you will say, ma'am, which mountain? There it is something which is quite be challengeable. But if I say make Everest mountain, oh, so even you don't know how the Everest look like, you will start creating something. अच्छा mountain बनाना है ना, मैम को क्या पता है एवरेस्ट दिखता है, मैम थोड़ी पर्सनली गई है. अच्छा मैम ये देखो एवरेस्ट ऐसे ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है, बड़ा बड़ा चट्टान होते हैं, ऐसे 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 ऐसे. If you've been with some you know hilly regions, Matharan or some of the Himachal or some Uttarakhand, like that states, so not that state, you visited some places, then you will know how the stretchy mountains are. So आप डिपिक्ट करने शुरू कर दोगे, हाँ हाँ देखो देखो मैंने बना लिया, लाइक दैट. Okay, so that create inspiration by that design is created by us, and we are inspired from that design. They evoke sense of movement कैसे सेंस करते, ऊपर, अरे ऊपर जाओगे तो बहुत स्लोप होगा या फिर बहुत टाइम लगेगा, नीचे स्लोप होगा. So this is what exactly you will discuss. If I say talk about more about the mountains, then you will start talking about like these things in this way, right? Now, what is contrasting quality? A geometric shape offer clarity and order, while organ shape provide warmth and adaptability, enhancing the visual appealing of the design. For example, can you say this? This is circle, but this circle is with some white color. Okay, and it is creating some visual representation. You don't know if I say what is this? This kind of this is some kind of structure, and it has some orange color. So with structure, you're also giving some shapes and colors. Okay, with that structure, you're creating some more structure, making it complex model, and you're also adding some color to it. So ये क्या एक visual appealing design create करना. Maybe it is not that interesting, but कुछ तो बन रहा है अच्छा वाला. तो डिजाइनिंग का कोई बाउंड्रीज नहीं था कि ये गलत डिजाइन है कि वो सही डिजाइन है. यू कैन क्रिएट एनी डिजाइन बिकॉज डिजाइनिंग हैज नथिंग रॉन्ग, नथिंग राइट. You can imagine anything, you can create anything of this world, but it should follow some principles, and that will come very soon. I hope ये चीजें समझ में आ रही है आपको. मूविंग ऑन, इतना कॉम्प्लेक्स तो टॉपिक नहीं है, मैं एकदम लेमन भाषा से बोल रही हूँ ताकि चीज आपको समझ में आ जाए. Role of composition in designing, defining the space and the shapes. Shapes play a crucial role in defining space within design, impacting the viewers and the perceptions. अगर मैं कहूँ कि ये लाइन एक बनाया, अब ये भी एक लाइन है, ये लाइन क्रिएट करते करते एक सर्कल का पार्ट हो गया, ये भी लाइन है, लेकिन दोनों सेपरेट लाइन है. तो ये स्पेस में दो सेपरेट लाइन क्रिएट हो रहा है. ये कुछ जाली जैसा लग रहा है, नेस्ट जैसा लग रहा है. ओके, ये कुछ मुझे वायर जैसे लटक रहे जैसे लग रहे हैं. ब्रिजेस को देख लो, ब्रिजेस में वैसे बड़े बड़े वायर्स होते हैं. देन क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट टू दी परसेप्शन, वो कुछ सोचने में हमारी मदद करते हैं या फिर हमें फोर्स करते हैं कि अरे इसके बारे में हम लोग कुछ सोचे. अब ये वर्टिकल लाइन से, ये कुछ कर्व लाइन से. सो बहुत सारी चीजें यहाँ पर ये शेप्स खेल लेती है चीजें विद इन दी स्पेस. सॉरी, अब ये स्पेस अलग है, ये स्पेस अलग है, कितना प्लेन है और ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक दैट. सो ये स्पेस के भी एक इंटरेस्टिंग रोल क्रिएट करता है, क्रूशल रोल. जहां पर चीजें को आपको कम्युनिकेट करना है, आपको डिजाइनिंग को एक्सप्लेन करना होता है. जहां चीज आपको कुछ बात नहीं करनी, यू विल मेक दो स्पेस एम्प्टी. क्रिएटिंग विजुअल इंटरेस्ट, आई होप यू आपको एग्जांपल समझ में आ गया. यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स एंड एनहांसिंग विजुअल इंटरेस्ट, ड्राइंग अटेंशन इन गाइडिंग द व्यूअर गेज. इफ आई से ये रहा ब्रिज का सबसे बड़ा वायर, ओ ये हाँ इसमें एक झूला आ गया, फॉर एग्जांपल लाइक दैट. सो तो ये वायर है, ओ ये झूला है. सो यू कैन यूज दो शेप टू क्रिएट सम इंटरेस्ट एंड समथिंग लाइक दैट. Harmony versus tension. So role of compositions also work with harmony and creating some tensions. What does that mean? Arrangement of the shapes can evoke the feeling of harmony or tension, influencing overall mood of the design. For example, right now you all are observing this design. आप लोग सोचेंगे क्या है, फर्स्ट मोमेंट में सोचेंगे क्या डिजाइन है, कुछ तो समझ में नहीं आया. बट those who have created this design, only that person knows that what he thought about while creating design. वो सोच रहा है कि कोई ये नेस्ट जैसा कुछ है जहां पर चिड़िया का घोंसला होगा. लाइक ही टुक नेस्ट एज अ इंस्पिरेशन एंड ही क्रिएटेड समथिंग लाइक दिस. अब ये उसके अंदर का ये केज जैसे है, अभी केज के अंदर छोटा सा नेस्ट है,
अगर मैंने ऐसे आपको स्टोरी की तरह बताया तो आपको लगेगा "हाँ, कितनी दुख की बात है", राइट? यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट। सो इन टाइम आपको टेंशन भी फील होगा, ये यार, ये जाली के अंदर एक पक्षी के लिए नेस्ट क्यों बनाना? सो this is also create some tension, so we'll know we don't want this nest, let it be open so that जो भी पक्षी बाहर से उड़ उड़ के आए वो आराम से अपना नेस्टिंग यहाँ पर आराम करे, थोड़ा खा के निकल जाए, like that, whatever. See, it is not a real thing, just I'm explaining you with some fun. So mm, just take those things in way of fun, nothing much more. Now, usage in different in context. What is the role of shapes in different context? Okay, simple भाषा में समझाओ तो shape is branding, shape is in packaging, shape is in advertising. Without shape you will not buy anything. If I say iPhone, oh, iPhone is in this shape, oh, this has got this camera, oh, this has got this thing. If I say TV, oh, I want Samsung TV of 55 inches, so it will be that screen, it will be some curve, Sony Bravia. See, I'm not promoting any brand, but see, they define the shapes. Okay, they talk about shapes. Sony Bravia, it will have some curve and with so many of inches, whatever it is. So they're branding their things on the by discussing about the shapes. And if I want to buy something, I will first decide the shapes, how the thing will look like. Okay, so shape is everywhere. When you want to buy some earring or some clothes, you will see whether I will have some समथिंग टू उसको पैकेटिंग करने के लिए मेरे पास वो चीजें होनी चाहिए, उतनी शेप की चीज अवेलेबल होनी चाहिए। कोरियर ही देख लो ना, कोरियर का पेपर को फोल्ड करना पड़ता है हमें, फिर हम लोग को वो लिफाफा ढूंढना पड़ता है उसके शेप के अंदर से वो एडजस्ट हो जाए। सो जस्ट इमेजिन, पैकेजिंग के लिए भी शेप्स का सही से होना बहुत जरूरी है, वरना एक छोटा सा कोरियर का सही पेपर भी अगर नहीं प्रॉपर पैकेजिंग में रहा तो यहाँ वहां होगा, वो चीजें मटेरियल गुम हो सकती है। शेप्स इन एडवर्टाइजिंग, बॉर्नवीटा, लिपस्टिक के बड़े बड़े ब्रांड्स देख लो, कॉस्मेटिक्स देख लो, साड़ी देख लो, टीवी, जो भी, देर आर सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग एंड इम्पैक्टिंग द इमोशंस ऑफ एन इंडिविजुअल. And for that reason, if things are very attractive and very catchy according the shapes, people will start buying those things on the spot. Whether they have money or you don't have money, they will find a way to get those things in that way, in that day. So that kind of behavior is been impacted by you if you create certain shapes for certain part of the product of the design. For interior point of view, how shape is important, how you can use those things in the branding, packaging and advertising. See, for the packaging, if you are good in canvas, you are good in painting, you have to create certain things and you know how to package them. And about the branding, you have to create your visiting card, you will be creating your letterhead, you will be creating your billboard and the headboard. All those things are used for your branding. For shapes in advertising, you will be using your style. What will be the style? You will be using organic design, you will be using some geometrical design, you will be talking about the important thing which you want to make that so more of the viewer can visit to your shop. This is something unique that you have created by using a simple shape. So shape is not just like that, shape is everything. Okay, without shape there is no creation of any design. कपड़ा, ज्वेलरी, ड्रेस, कुछ भी बोलो, shape is everywhere. Even for human being, वैसे तो पतली है तो मोटे, we even start talking about the people personality just with the shape. We even don't know the person is good or bad. We do not talk about their nature. We just start making our own judgment, because if we don't like some certain kind of shape, we don't buy them or we do not have them. For example, you don't like some what we call circular goggles or circular sunglasses, circular glasses. So as for your face, if you don't like it, what you will do? You will buy something else which suits your face and face structure. Even your face has some shape. It can be hard, it can be circular, so oblong, everything like that. So if you go for the shapes, it is a big thing and it's a huge topic to discuss. But now let it be. This much is okay for us to discuss. Okay. Now moving on the colors. If I'm attractive, you will start listening my lectures every day. If you don't like my color, you will maybe not liking to see my face next day. Kidding, don't take it seriously. See, you have paid the money for the class, so you have to see this lecture. Which it is your choice. I'm not imposing you to just see it. Moving on the colors. If something is very attractive, you will buy it. If something is not attractive, you will not buy it. We'll understand what is the role of the color. Let us see.
Color is a very big topic. Give me 1 second. So now we'll talk about the color theory. As I said, actually I got exhausted. So my pitch will be a little bit low. See, I am trying to get this class interesting and with your understanding. Don't worry, it's not a big thing. I will give you some assignments and then you will be able to work things easily. Color theory. Why color theory is important? Because everything in designing needs some rules and regulation. Color theory built in rules and regulation for your designing process. If you do not know what and how exactly the color to be used, you will not understand how I will create a good design and how it can be visually aesthetic or visually amazing. So color itself give all those emotions directly or indirectly, and how we can bring them and how we can achieve that result by just understanding the color theory from the basics. Okay, what is color, what is their interaction, what is complementary color, what is analogous color, how color theory really works in interior. Okay, what is color? Color is a emotion for a human being. For a emotion for a what? For a human being. If you like to have some color, for that reason, why you like those color? Because it is something which is giving you an interest. It is something which is creating some mood. It is something which is you liked it. Okay. So color create interaction. I want to buy an iPhone. I want to buy a phone. As I'm very liking this earring, so I will buy it more. So I want some silver kind of earrings or some more of the gold of earrings. If I'm fond of gold earrings, so whatever color I am liking, I will try to buy it from a one point of place, and that from there itself I will be I will be a regular customer, not very, I will be a regular customer to that person. So somewhere it is creating an interaction. So is it interaction is all about the business? No, it is a part where the business begin. Okay, if the things are attractive in design, if their colors are proper, then you can influence anyone's perception and it can build an emotion for them. Like, oh wow, it's so nice, I will buy it or I will don't like it. For a woman, most of women like makeup, so they will buy, oh, this is matte finish, this is glossy finish, whatever they feel like it's good for them, they will buy it. If you, as for men's, they will look for watches or they will look for mobile phone or laptop or something like that. I don't know what I make man crazy about products, but something like that. Okay. Complementary color. But before going to complementary color, let us understand what is color. Color is nothing, it's just a pigment. Pigment is color. Color, pigment, both are same. What is pigment? Pigment is a form of color. Okay, it is a creation of a color. It's a creation of the color. Now, how color works? Color can be light, it can be dark, it can be any way. It can be in any type. Okay, it can be blue, red, yellow, orange, pink, mauve, whatever. Okay, there is no there is no limit with the colors. But where is the limit? Is there any limit that you will be working with? Yes. We will be understanding about those things that color में लाल कलर का क्या रोल है, पिंक कलर का क्या रोल है, क्या ये कलर किसी वास्तु में प्रॉब्लम क्रिएट करे, इफ यस देन व्हाई एंड व्हाट, इन पे वर्क करेंगे. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होगा वो ये होगा कि कलर लोगों के विजुअल अपीयरेंस के अलावा भी क्या चीजें क्रिएट कर रही है. एग्रेसिव क्रिएट कर रहा है, कामनेस क्रिएट कर रहा है, तो उससे कौन से कलर होंगे जो कामनेस क्रिएट कर रहा है और उससे कौन से कलर होंगे जो एग्रेसिव क्रिएट करता है. या फिर हमें कोई फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कलर के बारे में समझना है क्या, जो इंटीरियर में अप्लाई होता है. देयर आर लॉट ऑफ पोर्शन इन डिजाइनिंग बट पीपल डोंट नो देम एक्चुअली. So in the color theory, we will be understanding all those points, all those steps one by one. ओके एंड इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको कलर के बारे में बता देती हूँ. कलर आर डिवाइडेड इन 6 स्कीम्स. कलर डिवाइडेड इन दी 6 स्कीम्स. ओके, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शरी कलर, एनालॉगस कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, मोनोक्रोमैटिक कलर, tradic color, not 6, sorry, 7 and 8 scheme.
strategic colors. All these 7 and 8 schemes are very important for the designing. You cannot use all of them in one moment, but they're the part of in the form of design, so you can then use them in later on. What is complementary color? A complementary color are opposite of each in color wheel and create a contrast when they used together to enhance the visual appealing. For example, if I say what is the opposite of blue, you will say ma'am ये तो उसके opposite तो orange जा रहा है. So you will say the opposite color will be the orange. So orange is what the complementary color. What it is? It's a complementary. For pink, what will be the opposite color for? You will say ma'am it's a green जा रहा है. So oh pink का opposite green जा रहा है. So it's a complementary color. So like that, whatever comes in the color wheel, that part of portion becomes your one color of that you have to find out what will be the next opposite color for it. Okay, that becomes your complementary color. What is analogous color? A sequence of neighboring colors. For example, if I say blue color, so this blue color. Now, as I said sequence, so blue के बाद क्या है? Green है, ये green है, ये green है. But there is something that where to stop now. Okay, you cannot keep on going on counting all those colors. No, the pattern of continuation of three. Okay, the pattern of continuation of three, like this color, this color, this color, all three colors. Now, for this, now if I say about this green, 1, 2, 3. So analogous color next to each other on the color wheel and create a harmonious design promoting unity and balancing. What is primary color? Red, blue, and yellow. What is secondary color? Green, violet, and your orange. Okay. What is tertiary color? Tertiary color is like red, orange, blue, green, red, violet, like that. Now, how these colors are impacting in design? Today is as the first day of your class, so I will be not talking much more about the color in detail. We'll have the discussion. Don't worry, we'll talk about it later on, not today. Emotional impact of color. So color has the greatest emotion. They are different colors can invoke emotions in people and influence their feeling and reaction. If you don't like red color and I apply all the red color inside your bedroom, you will start irritating. I don't like this color. Please remove. I want blue color. So please make it blue. So that is what exactly how the emotions work with the color. Okay. Red, passions, urgency. The color, what the red color defines. It has some characteristic with it. So what it is? Passion and urgency. Red color is associated with passion, energy, and urgency. Make it impactful in design. Make it more clear. Let me make it more easy for you. If I say romantic color, you will say, okay, romantic color is red. But if I say danger color, you will also say, oh, red color is also danger color. So red color तो दोनों ही होते हैं, danger भी होता है and romantic भी होता है, right? Now if I say blue color is calm, trust. Have you seen ocean and river? See, yes, I am pretty sure आपने कहीं ना कहीं YouTube में तो देखा होगा, फिर कहीं ना कहीं जाकर आपने देखा ही होगा. So for that reason, what happened? When you see those things, you feel relaxed, you feel calm. So nature से जुड़ा हुआ जो भी कलर होता है वो calm कलर होता है. नेचर से जुड़ा कौन से कलर होते हैं? Green, blue, and brown, light shades of brown, like that. Now color schemes क्या क्या है? Color schemes are the strategic combination of color that establish a specific visual appearance and evoke emotions. Okay? ये एक अपने emotions create करते हैं. Emotional responses. Designers select color scheme based on emotional impact they wish to create in the audience. For example, your girl, if you have a daughter or if you have son, your son will say, I like lavender color, or your daughter will say, I like pink color. Or if your daughter don't like pink color, if she says I like yellow color. So whatever your daughter like, you will try to make that color in her bedroom or in her study room, wherever she feels she is enjoying that color and she feel good. So even it create an importance to some person. If you say कि अच्छा ना इसको ये कलर पसंद है तो मैं ये कलर का अप्लाई करूँ तो उसको खुशी मिलेगी. But where to apply, how much to apply, that is something you need to learn. Visual harmony. It's also create a visual harmony enhancing overall aesthetic appeal in the design. Okay, अच्छा लगता है देख के, मजा आता है, शांति मिलती है.
अगर आपके मनपसंद कलर अगर आपके दीवार पे लगे या फिर आपके किसी स्पेस पे लगे, नॉट नेसेसरी मनपसंद ही हो, क्लाइंट ने कुछ कलर बताया ये लगाओ, तो यू शुड बी नोइंग वेदर दिस कलर इज गुड फॉर दिस स्पेस और नॉट. I will give you that lessons, don't worry, you will learn those things, but just I'm overviewing those things. So अभी तो फिलहाल ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम उस चीज में डिटेल में जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट. नाउ कमिंग अप टू टेक्सचर. Physical texture. A physical texture surface and physical texture and surface and influence harmony and interact with design. जैसे कि अगर आपने टच किया और आपको छुआ तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर स्मूथ रहा, अच्छा लगा, रही वाओ कितने इंटरेस्टिंग है, तो आप बोलोगे वाओ अच्छा. विजुअल टेक्सचर द पैटर्न इंटरेस्ट that create illusion of depth, surface, quality and anything visual. See, these are very definite, like kind of definition. That's why ये मैंने बहुत पहले हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया था थोड़ा बहुत पहले, लेकिन फिर भी यहाँ पर है तो मैं आपको मेरा फर्ज आपको पूरा सब कुछ समझाना. इम्पैक्ट ऑन डिजाइन. अब टेक्सचर का क्या इम्पैक्ट होता है डिजाइनिंग के? टेक्सचर प्ले a crucial role in design by contributing overall feel and emotion responses to the audience. They feel amazing, they feel happy, and most of things like good. Most of things are like good. What is visual textures and what is tactile texture? How we will, understand those things. Understanding visual texture. Visual texture refer to the illusion of texture that can be seen but not physically felt. It enhances the visual appeal in design. मैं कहूँ इसको टच करो, अब बोले मैम पॉसिबल ही नहीं है, तो स्क्रीन में है आपके, बट इफ ऐसे क्या लग रहा है देख के, तो बोलेंगे यार थोड़ा अजीब सा लग रहा है, रफ तो लग रहा है, बट व्हाट इज इट स्मूथ, ये कैसे पता नहीं ये स्मूथ है, तो आप बोलेंगे मैम आपने टच किया क्या? सो सेम थिंग दैट हैपन. जब तक आप चीज को देख नहीं लेते तब तक आप सिर्फ गेस वर्क करोगे, और जो चीज आप देख रहे हो बिकम्स अ विजुअल टेक्सचर. एक्सप्लोरिंग द टेक्टाइल टेक्सचर. टेक्टाइल टेक्सचर कैन बी फिजिकली फेल्ट. अगर आप छूओगे तो आप उसको क्या करोगे, जब छूओगे तो पता करेंगे रफ है, हार्ड है, smooth है, what exactly it is. Felt and is important in element creating and engaging design. It add depth and interest. Depth and interest that इफ आपको कहीं पर कुछ महसूस करवाना है, यहाँ पर अंदर हमारी बॉडी का ही स्ट्रक्चर देख लो, गले का अंदर का पार्ट बहुत सॉफ्ट होता है, लिप्स सॉफ्ट होता है, हमारे नोज बाहर सॉफ्ट होते हैं, लेकिन अंदर की जो हमारे बोन स्ट्रक्चर कितने हार्ड होते हैं. सो दोनों ही टेक्सचर खुद में बहुत डिफरेंट है. तो मैंने आपसे अपने बॉडी का पार्ट का बात बताई, आपकी भी बॉडी का पार्ट ऑब्वियसली सेम ही होगा, कुछ अलग नहीं होने वाला है, लेकिन डिजाइनिंग में कैसे पता चले? आप कुछ भी मटेरियल यूज करोगे, दरवाजा बना लिया, दरवाजे की चीजें आपको चुभ रही है बार बार, आप पकड़ते हो आपको अनकंफर्टेबल लगता है, तो आप क्या करोगे? आप वो मटेरियल ही हटा दोगे, राइट? सिंपल सी बात है. लेकिन जैसे वो अगर अच्छा नहीं लगेगा, अगर वाओ कितना मस्त कंफर्टिंग, ये छोड़ो, अगर मैं आपको, आप सोते हो, आपका जो मैट्रेस है, अगर मैट्रेस अगर बहुत हार्ड है, बहुत कड़क है और उस पर कुछ सोने को नहीं जम रहा, आप 2 दिन सोगे, तीसरे दिन फेंक दोगे, भले कितना भी महंगा क्यों ना, राइट? या फिर अगर आप एडजस्ट कर सकते हो एडजस्ट कर लोगे, लेकिन अगर आपने सस्ते में खरीदो तो आप दूसरा भी खरीद सकते हो. So you will not compromise honestly, but you are ready to change those things. ये टेक्सचर उसका अच्छा नहीं है. Enhance designing richness. Both visual and tactile textures contribute to overall richness and experience in a design, make it more engaging. So दोनों का क्या रोल है चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए? अगर मुझे, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे एक चेयर बनाना है, मैं एक इंटीरियर बना रही हूँ, तो मैं, आप मेरे प्लेस पे आके पहले बात नहीं करोगे मैम बताइए आपका साइट पे आपने क्या क्या काम किया, नहीं. कभी भी हम एज अ डिजाइनर किसी को भी अपना क्लाइंट का प्रोजेक्ट नहीं दिखाते, साइट पे तो बिल्कुल भी लेके नहीं जाते. क्यों? क्योंकि भाई भी कितने जन आते जाते रहेंगे, मैं उनकी प्राइवेसी ब्रीच थोड़ी कर सकती हूँ क्लाइंट के घर पे जा जाके. तो फॉर दैट रीजन मेरे पास कुछ फोटोज होंगे, मैं बताऊंगी, देन बोलेंगे अच्छा ये तो आपने दिखा दिया, व्हाट अबाउट द मटेरियल, हाउ आई विल नो वेदर यू आर गिविंग मी राइट मटेरियल नॉट. फॉर दैट टाइम व्हाट आई विल डू, आई विल शो देम द सैंपल्स एंड द कैटलॉग दैट आई एम हैविंग एंड दैट आई हैव गिवन टू माय क्लाइंट्स. सो that way you can give them the quality and you can give them the feeling of that material, whether it's a soft, rough, whatever it is, and according to that they can now have a judgment. But first, on the very first minute, if they don't visit my place, I will give them some things in the WhatsApp or in the visual technique. I will post them in some Instagram, I will post them somewhere, and if they like something they will just, फॉर एग्जाम्पल, बेटर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ, आप विंडो शॉपिंग करते हो, अमेजोन में जाके ज्वेलरी, इयरिंग, कपड़े का सामान, दुनिया भर का सामान देख लेते हो, ठीक है? तो वो क्या करो, आप विजुअल टेक्सचर को देख रहे हो, अच्छा ये अच्छा है, मुझे पसंद है, आपको नहीं पता वो बाद में खरीदने के बाद वो कंफर्टेबल लगेगा कि नहीं. अगर नहीं लगा तो आप जैसे पहनोगे आपको अच्छा ना, आपने बदल दिया, लाइक. तो वैसे ही विजुअल टेक्सचर भी काम करता है एंड टेक्टाइल टेक्सचर भी काम करता है. अभी एप्लीकेशन इन डिजाइनिंग में क्या है? वेब डिजाइनिंग में काम आता है, प्रिंट मीडिया में टेक्सचर काम आता है, पैकेजिंग एंड प्रोडक्शन काम आता है,
अब स्पेस में भी बहुत सारे स्पेस होते हैं, लेकिन हम दो स्पेस की बात करेंगे, नेगेटिव स्पेस एंड पॉजिटिव स्पेस। मतलब लेकिन स्पेस क्या होता है, पॉजिटिव स्पेस क्या है, नेगेटिव, अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिव स्पेस। पॉजिटिव स्पेस इंक्लूड मेन सब्जेक्ट ऑफ एलिमेंट ड्राइंग टू योर अटेंशन। फॉर एग्जांपल, ये पूरे स्पेस पे आपने ब्लैक कलर का ये हेडलाइन देखा, ये आपका अटेंशन ले रहा है, आपने ये देखा ही नहीं होगा, ओके। तो ये जो कलर है ये आपका अट्रैक्शन ले, ये एक पॉजिटिव इंप्रेशन आपकी स्पेस में क्रिएट कर रहा है। नाउ व्हाट इज नेगेटिव स्पेस, जहां पर कुछ नहीं है। नेगेटिव स्पेस इज एरिया सराउंडिंग पॉजिटिव स्पेस प्रोवाइडिंग बैलेंस कॉन्ट्रास्ट टू द डिजाइन। जैसे कि ये मेरे कंटेंट एक्सप्लेन करते वक्त आपके पास ये सारी कंटेंट है और ये बैकग्राउंड में व्हाइट है, लेकिन ब्लैक को सपोर्ट कौन कर पा रहा है, व्हाइट। अगर मैं ब्लैक ही रखूं तो आप ये देख पाओगे क्या, नहीं। तो दे वर्क लाइक ब्रदर एंड सिस्टर्स। ब्लैक है ब्रदर एंड व्हाइट है सिस्टर, पिक एनीथिंग, वाइवेन किसको भी बना लो, क्या फर्क पड़ता है। दोनों के बिना डिजाइनिंग इनकम्प्लीट है, दोनों ही होते हैं। ये कोई ओमेन नहीं है कि भाई नेगेटिव मतलब कुछ खराब है क्या, नहीं नहीं, वो पार्ट है, डिजाइनिंग का पार्ट है, ओके। एनहेंसिंग द विजुअल कॉम्पोजिशन। अब जो देखोगे उसमें आपके इंटरेस्ट क्रिएट होते हैं। जैसे कि आपने अभी यहाँ पर देखा, ये वाला पार्ट देख लो, यहाँ पर टिक मार्क है, अब बोलिए ये तो एम्प्टी है, तो ये नेगेटिव हुआ, और ये पॉजिटिव है बिकॉज यहाँ पर कुछ डार्क कलर है। तो ये जो एम्प्टीनेस को ये क्या कर देता है ये अभी, लेकिन अगर मैं सिर्फ करूँ इसी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्पेस के हिसाब से ये एम्प्टी स्पेस क्या हो गया आपका नेगेटिव, और पॉजिटिव स्पेस क्या हो गया ये। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये दो करेक्शन की बात करूं तो दोनों के हिसाब से नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस क्या हो जाता है आपके लिए, गोल्डन ये हो जाता है। So this is how, and this is what we have understood about positive and negative space. Let me give you some homeworks, make it down in book. You have to find out 5 different types of negative space and positive space. Apart from this, you have to find out the element of designs and principle of design in interior designing. You will be tell me how this works, okay? And again I'm repeating, you have to find out positive and negative space in interior. You need to give me a 5 quantity of it in Saturday, okay? Every Saturday you will be showing me your work. This is what you have to do, and you need to tell me about the element of design and principle of design. Go and search in Google, get something from it, and then you will be talking about it. See, I want interaction, so now I will not be having any interaction, but on Saturday we will be having face to face conversation. मैं चाहती हूँ आप लोग उस वक्त मुझसे बात करो, ओके? अभी कोर्स के लिए टाइम बहुत कम है और कोर्स बहुत बड़ा है, सो मैं इसलिए अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती। बात करना बहुत टाइम वेस्ट होता है, बात मतलब शुरू होगा तो खत्म नहीं होगा। आई डोंट वांट दैट, बहुत मुश्किल से सब चीजें क्रिएट होती है। ओके, क्रिएट डेप्थ एंड पर्सपेक्टिव। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस। स्पेस क्या क्रिएट करता है, सो इट क्रिएट एन इंपॉर्टेंस टू स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, मुझे थिएटर में बैठना है, ये थिएटर की सीट से, अब मैं यहाँ पर कौन सी सीट पे बैठ रही हूँ आपको क्या पता, अंटिल आपके पास उसका रिसीट नंबर हो कि हाँ ये ABCD, यहाँ इस स्पेस पे ये नंबर है मेरा, यहाँ पर मैं बैठूंगी, तो ऑटोमेटिकली वो स्पेस में आपका एक जोन सिलेक्ट है, तो आपका इंपॉर्टेंस हो जाता है। Space is essential in designing or creating depth and enhance the visual experience and make it more engaging. So क्या है, एक डेप्थनेस क्रिएट करता है, एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है और चीज को एंगेजिंग बनाता है। अच्छा, वो मैंने मस्ती में कहा थिएटर वाली बात, तो प्लीज उसको एग्जांपल में मत सोचना, यहाँ पर असली मतलब कुछ और है। स्पेस इन डिजाइन एसेंशियल क्रिएटिंग डेप्थ। फॉर एग्जांपल, मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपके लिए डेप्थ क्या होगा, मेरा बैक, ओके? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं, ये पूरा खोया हुआ है। ब्रह्मांड भी ऐसे, ब्रह्मांड के सामने हम क्या है, छोटे से दाना हुए, तो ब्रह्मांड खुद में कितना बड़ा है, लेकिन उसको अगर आप रिसर्च करते जाओगे उसकी डेप्थ का कोई अंत ही नहीं है, ठीक है? लेकिन विजुअली आप अलग अलग प्लैनेट्स देखोगे, अर्थ, वीनस, मार्स, अलग अलग। सो ये क्या करता है, ये एक अलग ही इमोशन, एक अलग ही दृश्य क्रिएट करता है चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, एंगेजिंग बनाने के लिए। फिर आप समझो कोई साइंटिस्ट है, उन्हें अलग अलग रिसर्च करना है कि अच्छा ये वीनस पे कौन सा प्लैनेट है, मार्स में कौन सा प्लैनेट है, तो वो एक एक प्लैनेट पकड़ेंगे और उस पर रिसर्च करेंगे। लेकिन डिजाइनिंग में इनका क्या रोल है, पहली बात तो ये। तो ये क्या है कि जब आप रूम को डिवाइड करोगे, उनको अपने स्पेस के हिसाब से डिवाइड करोगे, तो वो स्पेस अपने में कुछ अलग रोल क्रिएट करेगा। स्टडी के लिए अलग होगा, बेडरूम के लिए अलग होगा, ओके? क्रिएटिंग डेप्थ का मतलब क्या होता है, क्रिएटिंग डेप्थ का मतलब होता है कि आप एक मीनिंग क्रिएट कर रहे हो उस रूम के लिए, ओके? एनहांसिंग विजुअल एक्सपीरियंस। अगर आपने कोई चीज क्रिएट किया है किसी जगह पे, तो वो क्या क्रिएट करेगा, उस जगह का एक मीनिंग क्रिएट करेगा। लेयरिंग टेक्निक। लेयरिंग एलिमेंट इन डिजाइनिंग कैन एनहांस द डेप्थ एंड प्रोवाइड मोर इंटीग्रेट एंड
इंटरेस्टिंग इन विजुअल एक्सपीरियंस। अभी देखो यहाँ पर एक फोटो फ्रेम जैसे समझ लो इसको। अब यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे ऐसे डिजाइनिंग क्रिएट किया, मैंने कुछ लेयर्स बना, तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में, मजा आ रहा है। सेम वे मेरा बैकग्राउंड में यहाँ पर कुछ तो ऐसे लाइन जा रहे पीछे से आजू बाजू से, तो कुछ एक इंटरेस्टिंग क्रिएट करा है तो सिंपल सा स्पेस, लेकिन यहाँ पर रेड कलर का कुछ लेयरिंग बना के रखा है, कुछ वेब जैसा बना के रखा है, तो ये लेयरिंग क्या क्रिएट, ये चीज क्या इंटरेस्ट क्रिएट कर पा रहा है। ओवरलैपिंग इफेक्ट, अब ये ओवरलैपिंग कभी यहाँ से कभी यहाँ से कभी यहाँ से कभी यहाँ से, तो ये सारे ओवरलैपिंग इफेक्ट हो रहे हैं। ओके, क्रिएटिंग रेनफोर्समेंट डेप्थ एंड ड्राइंग व्यूअर्स टू अटेंशन एंड डायमेंशंस, तो ये मुझे और आपको यहाँ पर एक फोकस क्रिएट कर पा रहा है, लाइक दैट। सो ये चीजें हैं जो आपको, बैलेंसिंग एलिमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस पहले तो समझ लो क्या है। अगर डिजाइनिंग में अगर आपका बैलेंस नहीं रहा ना तो आप नहीं कर पाओगे। अब एलिमेंट ऑफ डिजाइन में क्या होता है, लाइन, शेप, टेक्सचर, कलर, स्पेस, ये चीजें हमारी एलिमेंट ऑफ शेप्स, एलिमेंट ऑफ डिजाइनिंग में आती है। लेकिन इन सबको बैलेंस करना भी तो आना चाहिए। आपने पूरा घर डिजाइन किया और आपको पता ही नहीं इसमें कलर बैलेंस कैसे करूं, इनकी शेप बैलेंस कैसे करूं, इसकी इंटेंसिटी में वर्क करना है, कहाँ करना है और क्यों करना है, तो चीजें आपको पता होनी चाहिए। The importance of balance gives in positive and negative spirit harmony in design and make it more visually appealing। अगर चीजें बैलेंस रहेंगी, नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस, तो खुद में क्या करेंगे, देखने में चीजें अमेजिंग लगेंगी और अच्छी लगेंगी। ओके, guiding the viewers, guiding effective balance get the viewers to eye, allowing better understanding and appreciate the design। ओके, जैसे बैलेंस आएगा वो देखने में भी अच्छा लगेगा, कामिंग लगेगा एंड हार्मोनाइज लगेगा। एनहेंसिंग कॉम्पोजिशन, प्रॉपर बैलेंस एनहेंस द ओवरऑल कॉम्पोजिशन ऑफ अ डिजाइन एंड लीडिंग टू मोर कोहेसिव एंड एंगेजिंग एक्सपीरियंस। तो क्या होता है, चीजें जब एक फोकस पे बनाई की जाती है और उसमें बैलेंस क्रिएट होता है तो देखने में वो क्या क्रिएट करता है, इंटरेस्टिंग क्रिएट लगता है उसको। और बेटर एग्जांपल में बेडरूम है, ठीक है, बेडरूम की दीवार में मैंने ब्लैक कलर लगाया, कुछ पेंट किया और मैंने एक लाल कलर का एक फोटो फ्रेम लगा दिया, तो ब्लैक कलर की वॉल में लाल कलर का फोटो फ्रेम अच्छा ही लगेगा, बिकॉज ब्लैक के साथ रेड हमेशा अच्छा लगता है। अभी ये देख लो ना, थोड़ा थोड़ा ब्लैक है यहाँ पर बैकग्राउंड में, थोड़ा लाल भी और कुछ पिंक कलर भी, तो दोनों में अच्छे कॉन्ट्रास्ट, एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, राइट। तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, ये कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट लाइंस, ये सारी चीजें क्या क्रिएट कर रही है, एक मीनिंग क्रिएट कर रही है और एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहा है। आपकी आईज कभी मेरे और होती है, कभी मेरे बैकग्राउंड के और होती है, कभी मेरी मूवमेंट्स पे होती है, तो ये चीजें क्या, मैं जितनी भी मूवमेंट्स कर रही हूँ यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ वहां, उठो उठो ऐसे करके, तो ओके, तो ये चीजें क्या क्रिएट कर रही है, ये आपके लिए एक इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है। नाउ लेट अस वी कम टू द फॉर्म। फॉर्म क्या होता है, फॉर्म मतलब क्या, जब कोई टू डायमेंशनल चीज में कोई वॉल्यूम ऐड कर दी जाए तो वॉल्यूम होने की वजह से वो एक रियल ऑब्जेक्ट बनती है, तो वो फॉर्म होती है, वो होती है फॉर्म। अब फॉर्म में 2D होता है और 3D फॉर्म होता है। 2D फॉर्म्स आर फ्लैट, लैक डेप्थ, एक्सेसिंग ओनली इन टू डायमेंशन व्हिच कैन क्रिएट अ स्ट्रांग विजुअल इम्पैक्ट। ड्राफ्टिंग, ड्राइंग, लेआउट बनाते हो, ओके, मैं बताती हूँ। ये रहा, फिर से कुछ बता रही हूँ मैं आपको, तो मैं बोलूंगी 2 BHK का फ्लैट, ये रहा, मेरा हॉल रूम, मेरा बाथरूम इधर गया, मेरा किचन इधर आया, ये मेरा घर, ये रहा, ये पूरा ये, ठीक है। अब मेरा घर का एंट्री यहाँ से, तो मेरा लिविंग रूम मैंने यहाँ पर बनाया, यहाँ पर मैंने किचन बना दिया, मेरा ये कॉमन टॉयलेट यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर मैंने कुछ और रूम बना दिए, ओके। फिर ये मेरा बेडरूम रहा, ये मेरा कुछ और रूम रहा, ये मेरा टॉयलेट रहा इस रूम के लिए, ओके। ये लाइक ऐसे ये मास्टर बेडरूम का टॉयलेट है, ये मेरा किचन है, ये मेरा नॉट 2 BHK 1 BHK समझ लो। तो आप मैंने क्या किया, ये 2D ड्राइंग बनाई, लेआउट क्रिएट किया। लेकिन अगर मुझे रियल में चाहिए तो भाई कंस्ट्रक्शन के मुझे एक तो जमीन खरीदनी पड़ेगी, उसमें मटेरियल डालना होगा, RCC जाएगा, मटेरियल के कंस्ट्रक्शन की चीजें जाएंगी, तब जाके वो रियल में मेरा घर बन के आएगा नो। आप बोलेंगे यहाँ पर मुझे 2 ईंट डालनी है, यहाँ पर ईंट बनाओ, यहाँ पर मेरा विंडो होना चाहिए, तो 2D ड्राइंग में आप सारी चीजें डिस्कस करोगे, तो 2D डिजाइन होता है, इसको क्या कहते हैं, 2D डिजाइन। और उसको रियल फॉर्म में जाएंगे तो वो 3D हो जाता है, मतलब रियल में आप उसके पास हो। 3D और एक चीज होता है, जो चीज आपको एक ग्राफिक में बनानी है और उसको इमेजिनेशन को रियलिटी में क्रिएट करना है, बहुत
कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. 2D forms are flat and like depth existing on two dimension, which can create a strong visual impact in design. Understanding 3D forms, they are possess depth and volume, allowing them to represent object and more realistic in various design of the field. Application design, both 2D 3D are essential in design, enhancing visual interest and realism in both context and purpose. For example, आपने घर बना लिया, अब आपको सॉफ्टवेयर में बोलूंगी आपको रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना है, तो रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने के लिए क्या करोगे, आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे और उसमें आप इंपोर्ट करोगे आपकी 2D ड्राइंग्स. स्केचअप में क्या करना है आपको, वो ड्राइंग इंपोर्ट करोगे आप. जैसे इंपोर्ट करोगे तो आपका 2D जो डायमेंशन घर का लेआउट है उसमें फिर मटेरियल डालोगे और वो 3D विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा कि क्लाइंट को बताओगे ये देखो 3D में, ये रियल में ऐसा दिखता है, राइट. 2D 3D. नाउ आई होप नाउ वी आर वेरी क्लियर वो काम कैसे करेगा. Why it is not selecting those? Volume and structure. Importance of volume signify effect on how viewer perceive the object and size. Role of structure is providing a frame to support design and element increasing visual stability and balance. Visual impact combining volume and structure better enhance the overall visual and environment. अब देखो ये मैं चीजें एक्सप्लेन नहीं करते बनी बहुत चीज अभी इंटीरियर डिजाइनिंग में. इंटीरियर डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को रियल में डालना है तो आपको अगर घर रेडी करना है 2D ड्राइंग बनाओगे, वॉल्यूम्स का किस करोगे, सीमेंट कॉन्क्रीट ग्लास ग्लास जो भी मटेरियल लगेगा आप वो लेके आओगे, साइड पे डालोगे और घर बन जाएगा. तो आपका वॉल्यूम ही हो रहा है ना, बिना वॉल्यूम के घर कहां से बनेगा, वो सिर्फ इमेजिनेशन में रखते तो सिर्फ ड्राफ्टिंग तक ही सीमित है, लाइक दैट. रियलिस्टिक एंड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म. तो रियलिस्टिक क्या होता है, रियलिस्टिक डिपेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड वर्ड इम्प्रेशन डिटेलिंग एक्यूरेसी एंड रिप्रेजेंटेशन. तो आप किसी चीज को अगर आपको इमेजिन करो कि मुझे ऐसे कुछ बनाना है तो उसको क्या करना है, उसको रियलिटी में डालने के लिए इसमें कुछ चीजें जाएंगी. एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म. एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ शेप्स कलर पैटर्न इफेक्ट फीलिंग. अपने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग से कुछ जो एक डिजाइन होता है, कलर बना दिया और वो डिजाइन रेडी हो जाता है. कन्वेइंग इमोशंस. बोथ रियलिस्टिक एंड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म कैन कन्वे डिफरेंट इमोशंस एंड मीनिंग इंपैक्टिंग व्यूअर्स टू इंटरप्रेट. तो आप अपने हिसाब से सोचो कि हाँ इसमें बहुत गहराई है, बहुत डेप्थनेस है, कितना डीप मीनिंग है. क्या डीप मीनिंग है वो आपको समझेगा, शायद मुझे वो चीज ना समझ आए. ठीक है, ये एक्चुअली जस्ट समझने के लिए डिजाइनिंग में इनका कोई बड़ा रोल नहीं होता. ये फोटो जो जो पेंटर होते हैं उनके लिए काम का है, लेकिन एज ए इंटीरियर डिजाइनर्स नो दे आर नॉट इन दैट यूज. प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन. तो थोड़ा ओवरव्यू करती हूँ आज के लिए, फिर हम लोग इतने ही रखेंगे. प्रिंसिपल डिजाइन में क्या क्या है हमारे लिए. प्रिंसिपल डिजाइन से पहले थोड़ा मैं आपको ये कवर करवाती हूँ क्या क्या हमने अब तक पढ़ा. हमने क्या क्या पढ़ा, रिवीजन ले लेते फटाफट 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 फटाफट. क्या क्या अभी तक कवर किया. यस, क्योंकि बहुत डिटेल में आपको मैंने चीजें समझाई है और वो हमारे वो क्लास से ये क्लास थोड़ा अलग है, लेकिन ये हम लोग डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे, ऐसे नहीं पढ़. ओके, तो हमने क्या क्या समझा, लाइन क्या होता है, शेप क्या होता है, कलर क्या होता है, टेक्सचर क्या होता है, स्पेस क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, प्रिंसिपल डिजाइन क्या होता है, बैलेंस कॉन्ट्रास्ट चीजें समझे. हम लोग उनके इंट्रोडक्शन के बारे में समझे कि डिजाइनिंग का क्या रोल होता है. फिर हमने लाइन शेप कलर एंड टेक्सचर्स के बारे में समझे, उसके इंपॉर्टेंट विजुअल रिप्रेजेंटेशन में क्या, कॉम्पोजिशन में क्या क्या थे, फिर लाइन के टाइप्स क्या क्या थे, फिर इम्पैक्ट उनके डिजाइन में स्ट्रक्चर में क्या था, कितना कैसे क्रिएट करना है, फाइन लाइन्स क्या होते हैं, शेप्स क्या होते हैं, ज्योमेट्रिक ऑर्गेनिक शेप्स. ओके, रोल इन कॉम्पोजिशन हमने ये पढ़ा, यूसेज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पढ़ा. मैं थोड़ा भगा रही हूँ क्योंकि एक ही चीज 10 बार बोलूंगी ना आप बोर हो जाओगे, तो मैं नहीं रिपीट करूंगी. बट क्या क्या चीजें अब तक कवर हुई है आपको बस एक फास्ट झलक. एक्सप्रेस राजधानी. इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ कलर. कलर स्कीम्स हमने पढ़े, हमने मूवी के टेक्सचर्स भी समझे, टाइप्स ऑफ टेक्सचर्स भी समझे क्या क्या होता है. विजुअल टेक्टाइल एप्लीकेशन इन डिजाइन वेब डिजाइनिंग टेक्सचर्स वो सबके लिए भी काम आते हैं. स्पेस नेगेटिव स्पेस पॉजिटिव स्पेस एंड क्रिएटिंग डेप्थ एंड पर्सपेक्टिव. बैलेंसिंग एलिमेंट समझा, क्या एलिमेंट का बैलेंस में क्या रूम है. फॉर्म क्या होता है, 2D 3D फॉर्म समझे. वॉल्यूम एंड स्ट्रक्चर समझा. रियलिस्टिक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म समझा. और अभी हम प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में आ रहे हैं. प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में क्या क्या होता है, बैलेंस होता है, एम्फेसिस होता है, मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है,
रेशियो एंड प्रपोर्शन होता है, ये सारी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मम्मी हो गई हमारी एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, और पापा क्या हो गए प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। पापा क्या हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि भाई तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो घर से बाहर बंद। ओके, किसी के घर पे पापा बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, किसी के मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, दोनों की पावर अपने अलग होते हैं। डिजाइनिंग में भी वही है, लेकिन यहाँ पर दोनों की पावर सही होते हैं। एक के बिना एक सरवाइव नहीं कर पाएगा, दोनों के बिना डिजाइनिंग इनकम्प्लीट है, तो दोनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लाइन बना दी, उसके शेप्स क्रिएट कर दिए, उसमें कलर बना दिया, 2D डायमेंशन बना दिया, आपने ये प्लेसमेंट रेडी कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी थोड़ा इसमें बताऊंगी आपको। समझो आपने एक लेआउट बना दिया, ऐसे करके बड़ा से एक लेआउट बना दिया। आपने बोला कि ये मेरा बेडरूम के लिए होगा, यहाँ पर मेरा किचन होगा, यहाँ पर ये होगा। फिर आपने ये भी सोचा कि मेरा मंदिर कहाँ जाएगा, मंदिर का कौन सा पोजीशन होगा, यहाँ पर कलर कौन से होंगे, मेरे किस टाइप का फर्नीचर जाएगा, क्या क्या होगा, ये सारी चीज आपने डिस्कस कर ली। ओपन तरीके से आपने डिस्कस कर ली। ये अपने ये भी सोच ले कि यहाँ पर मेरा ये एल शेप सोफा जाएगा। शेप भी डिस्कस कर लिया, शेप कौन से, डाइनिंग टेबल कौन से कलर का, कौन से शेप का होगा, थोड़ा डाइनिंग टेबल ऐसे ऐसे कर्व वाला होगा या फिर गोल होगा या फिर रेक्टेंगल होगा, कौन से शेप का। आप शेप तो डिस्कस करोगे ही करोगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं डिस्कस करोगे, बिकॉज परचेज भी उसके बेसिस पे करने वाले हो ना, राइट। आप ये है कि जो कलर का सिलेक्शन कर रहे हो, क्या वो शेप उस पार्ट ऑफ क्वेश्चन के लिए सुटेबल है क्या, वो कहां से लोगे, वो सिलेक्शन कैसे करोगे। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन गाइड करेगा आपको कि हमें ये चीजें कैसी करनी है। अंडरस्टूड। ये हेल्प करेगा आपको रास्ता दिखाने के लिए। दैट इज व्हाई बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। Introduction to principle of design. Balanced distribution of visual weight in design, creating sense of stability. Contrast involve opposing element to highlight difference and get visual interest in design. Emphasis is used to draw attention on certain element and making stand out. Unity ensure that all part of design works harmoniously together and create cohesive look. अच्छा create कर सके. For example, अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो बैलेंस में जैसे कि अभी मैंने ब्लैक के ऊपर ना ये बैकग्राउंड में एक से पिंक मारा, कलर कुछ तो डिजाइन किया, कैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा ना, ऑब्वियसली अच्छा नहीं है, क्या तो पिंक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर का कुछ लिया होता, सो यू विल से अरे ब्लैक के साथ तो व्हाइट अच्छा लगता है। ओके, ब्लैक के साथ तो व्हाइट अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉपर साइजेस ना होने की वजह से क्या देखने में बहुत अनईजी लगे। तो डिजाइनिंग भी क्या रोल का एक्सपेक्ट करता है कि आप जो बनाओ ना ओवरऑल साइज एंड शेप के हिसाब से वो भी जो क्रिएट करो वो भी उसके साथ बैलेंस सूटेबल है। ऐसे नहीं कुछ भी बना दिया। ओके, कॉन्ट्रास्ट कलर के साथ, अब ब्लैक के साथ पिंक भी जा सकता है, ब्लैक के साथ कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग कलर जा सकता है, लेकिन पिंक के साथ कौन सा अलग कॉन्ट्रास्ट कलर जा सकता है वो आपको सोचना पड़ेगा। एम्फेसिस, अभी एम्फेसिस का मतलब क्या है, ये मैंने सर्कल बना दिया, अब यहाँ पर एक डॉट मार दिया। आप किस चीज पे ध्यान दोगे, इस पे ध्यान दोगे या डॉट पे ध्यान दोगे। जो सबसे ज्यादा है वो आपका एम्फेसिस होगा, छोटा सा डॉट आपका एम्फेसिस नहीं होगा अंटिल एंड इस पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो तो, लाइक दैट। ओके गॉड। यूनिटी क्या होता है, चीजों को जो कोहेसिवली एक कंप्लीट लुक देता है। जैसे अपने 5 बेडरूम किचन का सारा कलर प्रॉपर लगाया, सब कुछ सही से लगाया, तो ब्यूटी कंप्लीट इसको होल्ड करके एंश्योर ऑल द पार्ट ऑफ डिजाइन वर्क हार्मोनियसली टुगेदर एंड क्रिएट अ कोहेसिव लुक, कंप्लीट गुड लुक। तो आज के लिए तो मैं बस कहूंगी इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। कुछ भी डाउट रहा वो सैटरडे सेशंस पे हम लोग मतलब वन ऑन यानी सैटरडे सेशन के डाउट्स सॉल्व होंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू।